Jai Hind children. Let's start the revision of ratio and proportion. One part already we have done. This is the second part, and in this you will learn about the proportion. Okay, we will do the revision of exercise 8b. So I am picking some questions from your book. Now first question is, show that 30, 40, 45 and 60 are in proportion. 30, 40, if the numbers are in proportion, children, if A, B, C and D, if they are in proportion, then what will happen? A is to B is equal to C is to D. Okay, A is to B, this is to ratio sign, and this is for the equality. Okay, A is to B is proportion to C is to D. And if it is like this, if they are in proportion, then definitely they will follow this formula. Which formula? Product of mean, product of extreme is equal to product of means. Okay, these are the means, children. Okay, and this is the extreme one. A and D is your extremes. Okay, A और D आपका extremes है, and these are the middle one, B and C means. So product of extreme मतलब A into D. A into D will be definitely equal to product of their means. Product of their means मतलब B into C. This formula always satisfy. If there are 4 numbers and they are in proportion, then they will satisfy this formula. A is to B is in proportion to C is to D. Product of extreme is equal to product of means. ठीक है, ये है. अच्छा, कभी कभी क्या कहते हैं बेटा, sometimes they used to give us only 2 numbers. They used to give us only 2 numbers and they used to tell us that what is the third proportion. क्या होता है third proportion? ठीक है, पहले एक बार first we will do this revision and then we will start with the question. Question will be easier for you then. मान लो ऐसे है, A, B and C. A, B and C are A, B and C are in proportion, है ना. उसमें से आपको बस 2 ही वैल्यू दी गई है, A and B, and they are asking for the third proportion. A and B, 3 numbers A, B, C are in proportion, so find out C. ठीक है, ऐसे दिया हुआ है. So if there are three numbers and they are in proportion, then this will be called as third proportion. इसको क्या कहेंगे? Third proportion. जब सिर्फ 3 numbers दिए हो और कहा गया हो कि they are in proportion, so this will be called as first, second. अगर 4 होंगे, अगर मान लो के पास 4 होंगे, A, B, C and D. So first term, second term, third term and fourth term, and this is also called as fourth proportional. क्या कहते हैं इसको? फोर्थ प्रोपोर्शनल. अगर 4 नंबर्स हैं और वो प्रोपोर्शन में है तो. लेकिन अगर 3 नंबर्स हैं और कह रहे हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन, आप कैसे करेंगे इसको? सो इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन. सी इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन. ठीक है, इसको थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे. और बी को हमको 2 बार रिपीट करना होगा. वी विल रिपीट बी 2 टाइम्स. और ये A हो गया और फिर यहाँ से ये C हो गया. सो दिस विल बी द वन. अब आपको 4 नंबर्स मिल गए. इफ दे विल गिव ओनली 3 नंबर्स, देन द मिडिल वन विल बी रिपीटेड. सो ऐसे. अच्छा, इसमें B को मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं. B को क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन. कभी कभी आपके पास आएगा कि देयर आर 2 नंबर्स A and C, है ना, नंबर्स देंगे आपको. There are 2 numbers. Find the mean proportion. तो मीन प्रोपोर्शन मतलब ये कौन सा नंबर है? मान लो B है, तो ये आपका 2 बार रिपीट होगा. So if you will take it as X, let that mean proportion be X. So X will be repeated 2 times. अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो मिडिल वन आ जाएगा. 3 नंबर में से मिडिल वन, और फिर 3 नंबर हैं जो प्रोपोर्शन में है, तो दिस इज द मीन प्रोपोर्शन. ये आपका तब ये हो जाएगा A is to X
इज टू x इज टू c, ऐसे। और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाले फॉर्मूले से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट दे सेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट शो करना है हमको, शो दैट 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रपोर्शन। 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमको शो करना है। सो इफ दे आर इन प्रपोर्शन इट मीन्स 30:40 इज इक्वल टू 45:60, है ना। इफ द नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे आप, इफ द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, व्हाट आर एक्सट्रीम्स? ये एक्सट्रीम्स हैं 30 एंड 60, दीज आर द एक्सट्रीम्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स 30 into 60 and what are the means? 40 and 45. So 40 into 45 उनका प्रोडक्ट हो गया। Now we will solve। अगर LHS और RHS बराबर आ गए तो it means product of extreme is equal to product of means, then definitely they are in proportion। अगर नहीं आएंगे तो they are not in proportion। We have to satisfy this equality sign। So this will be 2 zeros and 6 3s are 18। This will be equal to 1 0 यहाँ पे ले आइए, 5 4s are 20 and 4 4 is 16 plus 2 18। So this is 1800 is equal to 1800। LHS is equal to RHS, यहाँ पे लिखेंगे LHS is equal to RHS। Hence the product, as the product of extreme is equal to product of means, therefore the numbers 30 40 45 and 60 are in proportion। ठीक है, now let's see the next question। if 2:9 is equal to x is to 27, find the value of x। क्वेश्चन दिया गया है बेटा, I will not rub this formula because I am going to use this formula for the whole exercise। if 2:9, क्वेश्चन है बेटा, if 2:9 is equal to 2:9 जो है वो किसके इक्वल है? 2:9 इज इक्वल टू x is to 27, x is to 27। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। देयर आर 4 नंबर्स, आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स 1 इज अननोन, हमें एक नहीं पता है, 1 इज अननोन, बट दे आर इन प्रपोर्शन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इट as the product of extreme is equal to product of mean। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे the numbers are in proportion ऐसे करके, है, as product of extreme is equal to product of means, therefore product of extreme क्या हुआ बेटा? यहाँ से देखो 2:9 is to x is to 27। अगर आप इसमें लेंगे तो ये एक्सट्रीम है 2 और ये 27 भी आपका एक्सट्रीम है। सो 2 into 27 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा? ये 9 and x। सो प्रोडक्ट क्या होगा उसका? 9 into x। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो कीप x ऑन वन साइड एंड ट्रांसपोज दिस 9 टू LHS। लेफ्ट हैंड साइड पे लाना होगा इसको क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। सो x को एलोन करेंगे। सो कीप x ऑन दैट साइड। ये 2 into 27 is already here। Now this 9 is in multiplication, when it transpose to this side it will go for division। ये आ गया डिवीजन में। 9 3s are 27, 9 3s are 27। ठीक है, 9 3s are 27। So 2 into 3 कितना हो गया बेटा? 6। 6 is equal to x और x is equal to 6 is the answer। x is equal to 6 is the answer। x की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल लिया। वो ऑलरेडी शो कर रहा है कि ऐसे ऐसे है, यानी ये प्रोपोर्शन में। इफ दे आर इन प्रपोर्शन दे विल सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला पे आप वैल्यूज रखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट
I am picking those questions which I have not solved in the class. Question number 6 का first part. This is find the fourth proportion to 8, 36, 6, 8, 36 and 6. ठीक है. Let the fourth proportion, अब fourth proportion क्या होगा? Proportion be x. Let the fourth proportion be x. ठीक है. So आप क्या लिखेंगे? 8, 36 is definitely equal to 6 into x. ऐसे इफ दे आर इन प्रपोर्शन, अगर वो ये प्रपोर्शन में 3 नंबर आपको ऑलरेडी दिए हैं, चौथा आपको बोला गया निकालने के लिए, लेट इट बी एक्स, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं इसके, लेट द फोर्थ प्रपोर्शन बी एक्स, 8, 36, 6 और x, ये फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन. ठीक है, जब 4 नंबर होते हैं तो 8:36 इज इक्वल टू 6:x, ऐसे लिख दिया ना. फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो फोर्थ प्रपोर्शन की बात हो रही है इसका मतलब वो प्रपोर्शन में है, हमें बस उसकी वैल्यू निकालनी. इससे पहले वाले में x दिया था, इसमें आप इसमें उन्होंने नहीं दिया, तो इसमें हमको x लेना था. ठीक है, तो हमने लिया. लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x हो गया. दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, ये 8 into x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन, 36 into 6. ठीक है, x इज इक्वल टू 36 into 6 divided by 8. आप सॉल्व कीजिए इसको. When we will solve this, 4 2s are 8 and 4 9s are 36. ठीक है, and यहाँ से 2 3s are 6. So x is equal to 9 3s are 27. 2 3s are 6. Yes, 9x is equal to 27. Hence the fourth proportion is 27. x नहीं पूछा है उसने, so you will not leave till here, you will write a line also. Hence the fourth proportion is 27. ठीक है, I think these questions are clear to you. Now the next one. Next children, question number continued proportion में भी दिया हुआ है. Continued proportion means the middle term will repeat 2 times. क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया है 36, 54 एंड x. 36, 54 and x. They said that they are in continued proportion. ये क्या है बेटा? They are in continued proportion. 36, 54 and x. ठीक है, ये continued proportion में. continued proportion का मतलब अब आपको तो चाहिए 4 numbers, नंबर दिया गया सिर्फ 3, अब बोल रहा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो इस केस में आप मिडिल टर्म को 2 बार रिपीट करेंगे ऐसे. सो द नंबर्स विल बी 36 पहला, ठीक, सेकेंड टर्म विल बी रिपीटेड 2 times एंड देन x, ऐसे. नाउ क्या होगा? 36 is to 54 is equal to, is in proportion to 54 is to x, ऐसे. तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन. ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 54 into 54 अपॉन 36. अब इसको आप कट करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x. जब 3 नंबर दिए हो और बोला गया हो ये 3 नंबर दिया है, चाहे कोई भी 3 नंबर हो, इसमें तो x निकालना है आपको. समटाइम्स दे यूज टू गिव नंबर ऑल्सो, सो नंबर तो नहीं देंगे क्योंकि फिर तो वही हो गया. दे विल गिव वन अननोन नंबर एंड दे आर सेइंग कि दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. क्या है? ये 3 नंबर है और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल रिपीट द सेकेंड वन. जो सेकेंड टर्म होगा उसको हम 2 बार लिखेंगे. वी विल रिपीट इट, कंटिन्यूड, लगातार, कंटिन्यू. तो मिडिल टर्म को लगातार कंटिन्यूएशन में 2 बार लिखेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू
फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। अब थर्ड प्रपोर्शन क्या है? थर्ड प्रपोर्शन टू 8 and 12, 8 and 12। अब इसमें थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, इसमें बोला है कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो। तो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि वो आपका जो मिडिल टर्म है वो आपका 2 बार आप लिख करके उसको फिर 3 ही नंबर होते हैं, मतलब 3 नंबर हैं, ठीक है। देयर विल बी 3 नंबर, 1 will be 8, 1 will be 12 and let the third proportion be x, let the third proportion be x। अगर 3 नंबर दिए गए हैं तो उसमें अगर वो प्रपोर्शन में है तो उसमें जो तीसरा नंबर होता है वो थर्ड प्रपोर्शन होगा, ठीक है, दैट विल बी द थर्ड प्रपोर्शन। अब 3 नंबर से वी कांट डू दिस वन ऑल्सो, ठीक है। लेट मी इरेज दिस, ये, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिपीट द सेकेंड वन। क्या करेंगे हम? वी विल रिपीट द सेकेंड टर्म, ये वाला टर्म हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। सो 8 is to 12, it is equal to 12 is to x, ऐसे we will do this। and then product of extreme 8 and x, these are extremes, so उसको प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 into x, that is equal to product of mean बेटा 12 into 12, ठीक है। x is equal to 12 into 12 by 8, ठीक है, because we have to find the value of this x। x क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है। जब 3 नंबर होते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन, और सेकेंड टर्म आपका रिपीट हो जाता है, कंटिन्यूड में भी सेकेंड टर्म आपका रिपीट हो जाएगा। बस थोड़े थोड़े टर्म्स हैं, इनको आपको क्लियर रखना होगा। इसको इससे मत समझना कि देयर आर 4 टर्म्स, तो देयर आर 4 टर्म्स, 4 and 12 मान लो ऐसे, एंड दे आर इन प्रपोर्शन, तो ये थर्ड प्रपोर्शन होगा। नहीं, जब 4 नंबर होंगे, व्हेन देयर आर 4 नंबर्स, देन दिस विल बी द थर्ड प्रपोर्शन। बट आपका जब 3 नंबर होगा तो ये लास्ट वाला आपका क्या होगा? दिस विल बी द थर्ड प्रपोर्शन, और ये आपका 2 बार रिपीट होगा उस केस में, ठीक है ना। 4 3s are 12, 4 2s are 8, 2 6 are 12, 6 3s are 18, x is equal to 18, this is the answer। hence the third proportion is 18, hence the third proportion is 18, इस तरह से। now question number 11 first part। every time I have to use the same formula, that's why I am using it, I am not erasing it। question number 11 first part, we have to find the mean proportion of 6 and 24। find mean proportion, find mean proportional between 6 and 24। find mean proportional between 6 and 24, children, 6 and 24। so let the mean proportional be x। so ये हो जाएगा 6, फिर x, फिर आपका नेक्स्ट नंबर आएगा x, और फिर आएगा आपका 24। दिस विल बी द सीक्वेंस। x को आपको 2 बार लिखना है, मीन प्रोपोर्शनल मिडिल टर्म। जब 3 होंगे 3 नंबर्स तो उसमें मिडिल वाले को मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है, एंड देयर दैट यू विल राइट 2 टाइम्स। जब 3 नंबर्स हैं तो द मीन प्रोपोर्शनल यू विल राइट 2 टाइम्स। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी यही था, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 6 into 24 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसे, ठीक है, x into x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? ये 6 और 24। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? x into x। नाउ
मल्टीप्लाइड, सो ये x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 बचा 2, 6 2 जा 12 एंड 144, क्या आएगा बेटा 144। नाउ एक्स स्क्वायर, हमें तो x चाहिए बिकॉज x इज द मीन प्रपोर्शन, यहाँ तो x स्क्वायर है, सो कैन वी कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर टर्म, क्या 144 को हम स्क्वायर टर्म में लिख सकते हैं? यस, 144 क्या है 144 12 का स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे, आपको या तो लर्न करना होगा एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर, क्योंकि ये आपको स्क्वायर विल बी हेल्पफुल इन दिस केस ऑल्सो श्योर एंड इन द पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो। स्क्वायर आपको 20 तक लर्न करनी चाहिए। इफ इट इज नॉट लर्न देन यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। 144 का स्क्वायर टर्म है क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर टर्म ऑफ 144। सो अब ये 144 है, किससे डिवाइड होगा बेटा 2 से, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 बचा 1 तो 12 हो गया, सो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 फिर 1 बच गया तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, सो 144 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into फिर क्या है 3 into 3, ठीक है, सारे हमने कलेक्ट कर लिए, सारे हमने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, ऑल वी हैव कलेक्टेड। नाउ 144 इज इक्वल टू 2 into 2 का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर, फिर 2 into 2 मतलब हमको क्या करना है पेयरिंग बनाना है, सेम नंबर्स की पेयरिंग, 2 का पेयर बन गया तो 2 स्क्वायर लिख दिया, फिर 2 का पेयर बन गया 2 into 2 तो उसको 2 स्क्वायर लिख दीजिए, और फिर 3 का भी एक पेयर बना है, स्क्वायर करने में पेयर बनाते हैं, ठीक है, 3 into 3 क्या मतलब हुआ 3 का स्क्वायर, 3 into 3 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, 3 नंबर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसमें सारे पावर सेम है बेटा 2 2 2, अब इसको कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बचा 2 2 और 3, 2 into 2 into 3, इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर, सो 144 कैन बी रिटन एज 12 का स्क्वायर। जब आप ये प्राइम फैक्टर कलेक्ट करेंगे ना तो पहले पेयरिंग बना लीजिए, 2 into 2 का मतलब 2 स्क्वायर, फिर दूसरा 2 into 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 3 into 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर 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 बाहर ले आइए, पावर सेम है बाहर ले आइए, अंदर क्या बचा बेस में 2 into 2 into 3, तो 2 into 2 क्या होता है 4 और 4 into 3 क्या होगा 12, सो 12 और ऊपर क्या है बाहर स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर, 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, सो वी विल राइट 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, लिख लिया। नाउ स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो यानी बेस भी सेम होगा, इक्वालिटी का साइन है भाई, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, होना ही होना है, इक्वालिटी का साइन है, तो पावर इज सेम, इट मीन्स x इज इक्वल टू द बेस दैट इज 12, सो 12 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 12। अब ये आपका आंसर आ गया, हेंस द मीन प्रपोर्शन इज 12, हेंस द मीन प्रपोर्शन इज 12, ऐसे करना है। इतना करने की बजाय इतना आपका टाइम टेकिंग होगा ना, learn it, learn till 20 squares. Now this is all about, now one question is there, like question number 13 is there, what number must be subtracted from this to get the numbers which are in proportion। हम कौन सा नंबर इन चारों नंबरों में से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा क्या हो जाए वो proportion में हो जाए। right now the given numbers are not in proportion, इसका मतलब तो यही है, right now in question number 13 the given numbers are not in proportion। product of means, ठीक है, see from these questions, question number 12 what must be added, सेम है what must be subtracted, 13 जो मैंने लिया है सेम एज 12 है, उसमें बस एडेड करना है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। what number must be subtracted from 10 12 19 and 24, 10 12 19
एंड 24 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट दे आर इन रेशियो, दे आर इन प्रपोर्शन. सो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x. अगर एडेड होगा तो आप ऐड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है तो इसमें हमने मान लो पहले वाले से x सब्ट्रैक्ट किया. सो दूसरे से भी हम वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सेम नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. थर्ड से भी हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे और लास्ट से भी हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑल वी हैव सब्ट्रैक्टेड, x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सबसे. वो कौन सा नंबर है जो इन चारों में से सब्ट्रैक्ट करने पे आपको वो जो नया नंबर मिलेगा दैट विल बी इन प्रपोर्शन. सो लेट दैट नंबर बी x विच हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच. नाउ दे आर इन प्रपोर्शन. तो दे आर इन प्रपोर्शन तो मतलब ये प्रपोर्शन का साइन हो गया और यहाँ पर रेशियो का साइन और फिर यहाँ पे ये इक्वालिटी हो गई. ऐसे अगर ये प्रपोर्शन में है तो ये ऐसे होंगे ना, यानी 10 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 10 माइनस एक्स इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 12 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स. ठीक है, अब इसमें आएगा स्क्वायर, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अलग है. अब क्या करेंगे बेटा, ये बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन है. सो हम पहले एक नंबर लेंगे, दिस नंबर, दिस विल मल्टीप्लाई विथ होल. फिर हम x लेंगे और x विल मल्टीप्लाई विथ द होल. ठीक है, 10 विल मल्टीप्लाई विथ द होल, 24 माइनस एक्स. ठीक, कर दिया 10 को मल्टीप्लाई. फिर साइन लीजिए, माइनस x है तो माइनस एक्स लीजिए और इसको फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 माइनस एक्स. ऐसे, ये आपने कभी किया नहीं है, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है. दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12 को पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे 19 माइनस एक्स से. सो 12 विल मल्टीप्लाई विथ 19 माइनस एक्स, देन पुट द साइन माइनस और फिर ये x उससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स विल मल्टीप्लाई विथ 19 माइनस एक्स. In this way you have to solve. अब इंडिविजुअली आप, ये आपको आता है, दिस यू नो, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है. पहले 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 24 240 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस है, ये माइनस है, माइनस आएगा, साइन डिफरेंट है, माइनस आएगा. 10 इंटू एक्स 10x, ओपन हो गया एक ब्रैकेट. फिर नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, 24 इंटू एक्स 24x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर. जब आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो उनकी पावर ऐड होती है. कोई पावर का मतलब नहीं, का मतलब 1, उनकी पावर ऐड होती है. मान लो अगर आपने एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, x टू द पावर 3. उनकी पावर ऐड हो जाती है जब आप वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा एक्स वाई. ये है रूल. डिफरेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही लिखना पड़ेगा, वैसे ही वैसे ही लिखना पड़ेगा. अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो व्हाट यू विल राइट दैट वेरिएबल एंड यू विल ऐड देयर पावर, जो भी पावर है. 1 1 है तो 2. अब इस केस में x इंटू एक्स, सेम वेरिएबल है, ठीक है, तो हमने x लिख दिया. पावर क्या है, कुछ नहीं का मतलब 1. सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2. अब दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 19 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे बेटा. देन प्लस माइनस माइनस, 12 इंटू एक्स 12x, देन माइनस प्लस माइनस 19x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर. तो इस तरह से हमको इसको ओपन करना है. अब ये x स्क्वायर तो पूरा कट जाएगा, वी विल take it on one side and then we will find out the value of x. If it is tough, no need to see it and see the video again and do it. ठीक है, क्या करेंगे आप इसको, पहले एक नंबर, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस एक्स से, ये ना, ठीक है. फिर माइनस, फिर दूसरा टर्म x और इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x विल मल्टीप्लाई विद द होल टर्म, ये ऐसे. फिर यहाँ आ जाइए, 12 विल मल्टीप्लाई विथ होल टर्म,
12 will multiply with the whole term. Then minus sign है तो minus sign x लिख दिया and this will multiply with the whole term. ये now open the bracket. Now collect it. 240 अब माइनस 10x और 24 10x कितना हो गया बेटा? दोनों माइनस में है, ऐड होगा 34x माइनस 10 और माइनस 24 माइनस 10x x है ना, लाइक टर्म है ना, तो वी आर एडिंग. क्लास 6 में पढ़ा है आपने, x का x के साथ हम ऐड कर सकते हैं. तो माइनस 10x और माइनस 24x माइनस 34x हो जाएगा. प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 19. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 190 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है. 19 10 जा 190 एंड देन उसके बाद 2 टाइम्स और 19 जाएगा ना, 38 8 228 बेटा. दिस इज 228 क्या, कुछ नहीं, माइनस अब 12x और 19x. अब इसको आप ऐड करिए क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे और नेगेटिव का साइन रहेगा. सो दिस विल बी x. x वाले को x के साथ हम कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट. ये 1 और 31, ठीक है, ठीक है. एंड देन एक्स स्क्वायर. अब नाउ x के टर्म को एक तरफ करते हैं, बाकी टर्म को एक तरफ कर देते हैं. सो लेट्स डू इट. 240 इसको इधर ले आइए बेटा, माइनस हो जाएगा 228. फिर इस ये यहीं था एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू माइनस 31x और ये जब जाएगा उधर तो ये प्लस 34x हो जाएगा. ये हो गया, ठीक है. आई हैव कलेक्टेड x टर्म. x को निकालना है ना, x की वैल्यू निकाले तो x वाले टर्म को सबको एक तरफ कर दो, बाकी जितने भी टर्म है सबको एक तरफ. सो इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप 240 में से 228 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बचेगा 12, ठीक है, 12. नाउ x और x स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट. दैट इज इक्वल टू, अब वहां से सॉल्व कीजिए तो 34 में से 31 जाएगा तो 3, ठीक. नाउ x को यहीं पे रख देते हैं, 12/3 इधर आ जाएगा, ठीक है. आ गया ना आंसर. 3 मल्टीप्लाई में है, 3 यहाँ डिवाइड, तो 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4. 4 ऐसा नंबर है जो आप सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 से भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 से भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 19 से भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आपको जो नया नंबर मिलेगा 6, 20, 12 से 4 करना है तो 8 और 19 से 4 करना है तो 15. ये क्या है, दे आर इन प्रपोर्शन. दे आर इन प्रपोर्शन, ये आंसर आएगा आपका. दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन. और पूछा गया कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो द नंबर इज 4. द नंबर इज 4 विच हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर सो दैट द न्यू नंबर विल बी इन प्रपोर्शन. ठीक है, इट्स वेरी मेसी राइट नाउ बट वी हैव टू सॉल्व. Replay this question if it is not clear to you. And for the next question, you can see the examples which is given in your book, and then you can easily solve. But the main part is the conceptual questions, children. The conceptual questions which we have done today. All the conceptual questions. Revise it properly, and then you will able to solve it. Till then, children, take care.